Good morning, class. My video is related to Access. As you know that in our second chapter we have read about the Access and the terms that we are using in Access. Today in this video I am going to show you the practical portion of Access, means how we can create the database, how we can make the tables, how we can relate the tables. So I am going to start. So first you have to open Access. For this I am just clicking on MS Office, then Access. In here you can see that there are so many folders which are based on database that you also get on your database if you are working with 13. If you have 7 or 10, then some options might be not there, but you get these options. These are the categories of databases like customer web app, अगर आप वेबसाइट पे बना रहे हैं, then blank databases, then nutrition tracking. These are basically the default means the predefined databases where you get the tables, you get the options related to that category. Okay, but here just because we are going to start the database, so we are clicking on blank database. ठीक है, so first we click on blank database, then you get this screen. Okay, here the name is given, which is database 1. One thing that you have to remember here, that in each and every software except database and one or two databases, first you have to write the data, then you have to save the file. But here in databases, first you create the data, then you allow to make the tables. यानी in simple we can say कि आपको पहले फाइल सेव करना पड़ेगा, तब आप उसके बाद उसमें आप अपना जो टेबल्स है वो क्रिएट कर सकते हैं. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट द नेम. आई एम राइटिंग द नेम स्टूडेंट. Okay, this is the database name, and then right click. ठीक है, if you want to check that where your data is going to store, so this is the browser, means this is the path that is given. If you want to change the path, just click here. ठीक है, and whatever path you want to select, like documents, in this computer I am just saving in documents. If you want to save on C drive, मतलब desktop or any other folder, then you can change the path. ठीक है, I am not changing, I am just storing in D drive student मतलब documents only. Then create. Now you get this screen. ठीक है, here you can see that the tables are given. As I said, then in database tables are there on which we are creating the data. So here you get the table. There are two columns. All the columns that you can see here, that is like ID and click to add. This is the default table that is given. मतलब by default the table is given, and here you can store the data. But if you want to create the data according to your choice, according to your views, according to your question, then you just click on view, and here you get two options. One is data sheet view. Data sheet view is used to just see the table, and the second is design view. ठीक है, so for design view you have to give the name of table first. Here we are writing detail. ठीक है, detail of student, तो the name of the table is detail. ठीक, okay. Now you can see that you get this type of window where three columns are given. First is field name, second is data type, and third is description. In first field name means the name of the column. जैसे जनरली यू कैन सी कि आप जो टेबल देखते हो उसमें नेम, सरनेम, फादर नेम, मदर नेम, दीज आर द नेम ऑफ द कॉलम्स. तो दैट नेम्स यू हैव टू राइट इन फील्ड नेम. And data type means which type of value you want to give in that particular column. जैसे अगर आप नेम दे रहे हो तो कैरेक्टर टाइप, इन फोन नंबर्स नंबर टाइप, in address character type, because
there are some different types of data types that I am going to explain. But before that, you just look at here one key is there that is visible on this bar. The key shows that this is the primary key that by default system has made for you. But if you don't want this one, then you can remove that, you can delete that, and you write your, just like I'm going to write roll number. Means for my table I want the roll number as primary key. So I have written roll number, then auto number. Auto number, I am just changing auto number with other data type. And before just going before continuing my next column, I am just going to explain all these data types. The first one is short text and long text. Short text is used for giving yes no answer, matlab like in short, yeah, like male female, like these type of columns. If you have to mention short text, matlab 5 to 10 characters character value if you want to give for any column, then you can use short text. Long text basically for giving the values related to 50 characters and 40 characters, like this. Address, just like address. Then number for giving the integer value, ठीक है, जस्ट लाइक 10 20 30 40. फिर आता है नेक्स्ट डेट एंड टाइम. तो डेट एंड टाइम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डेट ऑफ ईयर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये हमारा हो गया डेट एंड टाइम. करेंसी, अगर आपको कहीं पर फीस की बात आप कर रहे हैं, सैलरी की बात आप कर रहे हैं, तो आप करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑटो नंबर मीन्स फॉर प्राइमरी की, जैसे आईडी आपका जो होता है उसमें आपका ऑटो नंबर होता है जो सिस्टम खुद से जनरेट करता है. ऑटो नंबर इज बेसिकली द नंबर, बट सिस्टम जनरेट दोज नंबर्स रैंडमली, तो इसीलिए इसे ऑटो नंबर हम कहते हैं. यानी ये ऑटो नंबर एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें यूजर कोई वैल्यू एंटर नहीं करता, सिस्टम खुद से जनरेट करता है एक यूनिक नंबर. फिर येस और नो. येस और नो को जनरली वी कैन से बूलियन ऑल्सो. येस और नो एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर हम येस और नो यानी वाई और एन का यूज करते हैं. जैसे अगर आपसे पूछा जाता है मेल और फीमेल, तो अगर या तो आप मेल पे टिक करते हैं या फीमेल पे टिक करते हैं. तो अब अगर आप मेल पे टिक कर रहे हैं, इट मीन्स आप मेल को येस कह रहे हैं. अगर आप फीमेल पे टिक करते हैं तो आप फीमेल को येस कर रहे हैं. और अगर आप एक को येस कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट दूसरा वाला नो हो जाएगा. OLE ऑब्जेक्ट आपका, ये अगर आप किसी भी एक्सटर्नल जैसे चार्ट पेपर्स को या किसी भी एक्सटर्नल कोई ऑब्जेक्ट को आप अगर अटैच करना चाहते हैं, जैसे कि एक्सेल हो गया या आपका वर्ड हो गया या आपका कोई और हाइपर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आप लेना चाहते हैं, इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं अपने डेटाबेसेस के साथ में, तो आप OLE ऑब्जेक्ट्स पे जा सकते हैं. हाइपरलिंक, अगर आप अपने डेटाबेस को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ में जंप कराना चाहते हैं कि आप किसी भी एक कॉलम पर क्लिक करिए तो वो वर्ड में जंप कर जाए या एक्सेल में जंप कर जाए, तो हाइपरलिंक. अटैचमेंट, अगर आप कोई भी फाइल, कोई पिक्चर, कोई चीज़ अटैच करना चाहते हैं, कोई डेटा अटैच करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. लुकअप विजार्ड भी आपका उसी के लिए यूज़ होता है. अगर आप मेल के थ्रू यानी आप इंटरनेट के थ्रू कोई पोर्शन करना चाहते हैं तब आप यहाँ से कर सकते हैं. या आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो डेटा है वो कैसा दिखाई देगा एक्सटर्नली. जनरली हम जो यूज़ करते हैं वो है नंबर, टेक्स्ट और येस नो और डेटा टाइप, सॉरी डेट एंड टाइम. ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम रोल नंबर को ले लेते हैं नंबर में. नेक्स्ट अब हम आते हैं, देखिए डिस्क्रिप्शन वाला जो आपका कॉलम है ये बेसिकली यूज़ किया जाता है अगर आप किसी भी कॉलम को स्पेसिफाई करना चाहते हैं, उस कॉलम को डिस्क्राइब करना चाहते हैं. अगर आपने रोल नंबर लिखा है और आप रोल नंबर के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं कि रोल नंबर उन बच्चों का, ये रोल नंबर को आपने प्राइमरी की बनाया हुआ है या रोल नंबर में आपने क्या इंसर्ट करना है, कौन सा रोल नंबर है, आपका बोर्ड का रोल नंबर है, या तो अगर आप कोई स्पेसिफिक एक डेफिनेशन अगर आप रोल नंबर के लिए स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इसको छोड़ देते हैं. सेकेंड हमने ले लिया यहाँ पर नेम.
नेम को हमें क्या करना है, नेम को हमें टेक्स्ट की तरह लेना है। तो यहाँ पर हम फिलहाल लॉन्ग टेक्स्ट ले लेते हैं ताकि अगर किसी का बड़ा नाम भी हो तो भी आपका वो हो जाए। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पर फादर्स नेम, फादर नेम, फिर आपका हो गया मदर नेम, फिर एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने अभी फिलहाल अपना टेबल बना लिया है। इसके आगे का अभी हम फिलहाल इतना सिंपल टेबल यूज कर रहे हैं। हमने क्या किया, इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया। देखिए जनरली क्या होता है, हमें इसे सेव करना है, हम चाहें तो इसको यहाँ से भी जाकर सेव कर सकते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको क्लोज करते हैं। जब क्लोज करेंगे तो ये विंडो आपका ब्लैंक हो जाएगा और आपके टेबल का नाम आपके लेफ्ट नेविगेशन पैन पे आ जाएगा। आपने क्या किया, इसको डबल क्लिक किया तो आपका देखिए ये टेबल बन गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको जाकर ऐड करना है, यानी अब वैल्यू को आपको इंसर्ट करना है। तो फर्स्ट यू हैव रिटन रोल नंबर में 1, देन नेम, then then okay, now just click press enter टू जस्ट कम फॉर द नेक्स्ट रो। एक बार में एक रो आपका एंटर होता है। जैसे ही आप अपना टेबल क्लोज करके एंटर करेंगे तो सेकेंड रो आपका आ जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये तो हो गया आपका टेबल की। अगर आपको टेबल कोई बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं। द नेक्स्ट इज कि अगर आपको आगे कोई काम करना है, लाइक अगर आपको क्वेरी करना है या फिर आपको कोई और ऑप्शन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे। नाउ इन क्रिएट यू गेट ऑल 4 ऑप्शंस। जैसा मैंने आपको बताया था कि आप फॉर्म बना सकते हैं, क्वेरीज कर सकते हैं और आपका मॉड्यूल बना सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक आपका टेबल ऑप्शन है, देन क्वेरी ऑप्शन है, देन क्वेरी डिज़ाइन आप खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, देन फॉर्म। देखिए अभी हम सिंपली आपको दिखा रहे हैं कि आपका क्वेरी कैसे आप कर सकते हो। जैसे अगर आपने क्वेरी पे क्लिक किया तो आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं, एक सिंपल क्वेरी, क्वेरी क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड, डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड और अनमैच्ड क्वेरी। तो हम सबसे पहले सिंपल क्वेरी पे जाते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास में 5 कॉलम्स हैं। इन 5 कॉलम्स में से पहला आपको कौन से, जैसे हमने आपको बोला था कि क्वेरी का मतलब है क्वेश्चनिंग, कि आप क्या क्वेश्चन कर रहे हो। तो यू सेड कि मुझे रोल नंबर जानना है। ठीक, तो आपने क्या किया, आपने रोल नंबर पे क्लिक किया यहाँ पर, और इस वाले ये देखिए यहाँ पर 2 हैं। सिंगल एंगल ब्रैकेट का मतलब है 1 कॉलम और डबल एंगल ब्रैकेट का मतलब है ऑल कॉलम्स इन 1 टाइम। ठीक, तो आपने इसको क्लिक किया तो आपका रोल नंबर आ गया, यानी जो आपको अपने आउटपुट में चाहिए उसमें आपको सिर्फ रोल नंबर जानना है। नेक्स्ट, ओपन द क्वेरी टू व्यू इंफॉर्मेशन। ठीक, और या फिर आपको मॉडिफाई करना है तो अभी हम मॉडिफाई नहीं करना है, हमें सिंपल देखना है। तो हमने ओपन द क्वेरी में किया, इसको फिनिश कर दिया। ठीक, अब आप देखिए कि आपका जो टेबल था उस टेबल में से सिर्फ एक कॉलम प्रिंट हो गया जिसका नाम है रोल नंबर, यानी हमें सिर्फ रोल नंबर चाहिए था तो उसने बाकी का टेबल का डेटा हटा दिया और एक आपका सिर्फ एक कॉलम शो किया विच इज रोल नंबर। तो ये एक सिंपल क्वेरी हो गया। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्म, कि अगर हमें फॉर्म बनाना हो तो देखिए ये आपका फॉर्म है सिंपल, कि ऑटोमेटिक आपका फॉर्म बनकर आ गया। बट अगर आप फॉर्म डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप फॉर्म डिज़ाइन भी कर सकते हैं। फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए आपको फॉर्म डिज़ाइन ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, और डिज़ाइनिंग कैसे होती है ये अभी हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे किया जाता है। देन रिपोर्ट अगर आपको बनानी है तो यहाँ पर देखिए एक वेब पेज बन गया आपका, और उस वेब पेज का आपका जो भी आप जो आपने विंडो ओपन किया था उसके अकॉर्डिंग आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म क्रिएट हो गया। ठीक।
ठीक है। तो ये एक आपका एक सिंपल चीज है कि अगर आपको ये देखिए आपका एक फॉर्म है, आपने अपने जब आप एडमिशन का फॉर्म भरते हैं या कहीं पे भी आप फॉर्म भरते हैं तो आप ऐसे ही देखिए लिखा रहता है। ये आपका एक बेसिक फॉर्म का डिजाइन है, आप चाहे तो इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, डिजाइन, कलर, इमेजेस कुछ भी डाल सकते हैं, जो हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम आपको कल अपने लाइव क्लास में बताएंगे, साथ के साथ उसका वीडियो भी आपको प्रैक्टिकल का बनाकर डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।